guys, thank you for watching Sneha Tauri, and again we are back with a beautiful lady on the sets of the Creative Crossroads. So we have one of the grooming talents, one of the budding talents in the modeling industry, specifically let's say beauty pageants वाला जो आपका segment होता है उसमें she is very much recognized, and I'm so happy and I'm so proud on the same lines क्योंकि she is just 18 years old. Only 18 years old. She's into second year right now, right? Yeah. And she's doing her mass communication. वैसे ethically introduction उसको देना चाहिए, but I'm so excited कि मैं खुद ही उसका introduction दे रही हूँ. So she is Diksha Patel. So hi Diksha. Hi Sneha, thank you for the lovely introduction and I'm excited for this. Lovely introduction is only meant for lovely people, by the way. It means a lot. And I must say that beauty lies in the eyes of the beauty holder. Oh, देखो यहाँ hard चल रहा है. So how are you? I'm good. And how about you? Exactly how you are. So I'm also good. I'm so happy that we could finally make out this thing. Exactly. After planning for it, from past so many days. So Yeah. I'm so happy. So firstly, tell me something about you as a person. Okay, so when I'm talking about myself, I'm a passionate person, I must say. क्योंकि मैं बचपन से है ना, I'm very fascinated about modeling industry and beauty pageants. So मुझे when I was 11 to 10 years old, तब से मैं इसमें हूँ into Okay. modeling industry. Okay. So I was very passionate about it. I was very fascinated about it. And yeah, I'm growing as a person right now. Wow, wonderful. So tell us something about your journey. How did you start with, coming into the stream of beauty pageants and everything? Okay, so ऐसी मेरी कोई स्टोरी नहीं रही है. I'll be very realistic with Yeah. you. So एक दिन मैंने randomly TV ऑन किया to watch cartoons and मेरे सामने मिस इंडिया का pageant चल रहा था. Okay. Before that I never knew that Miss India exists. Okay. So मैंने वो pageant देखा. Manushi Chillar won. Okay. And later that she won Miss World also. So I was very fascinated about her journey. I was so inspired by her. And then मुझे ऐसे लगा कि यार ये चीज़ है जो मेरे लिए बनी है. This is the purpose of my life. Okay. And then फिर मैंने research किया. I got into it. And then I got with my first show, Okay. which was with a talent icon, and then I won best Wonderful. confidence. I was in 9th standard when I did my first show. And दूसरे दिन मेरा final paper था of maths. Shit. How did you manage? I managed. First of all, my parents and my teachers were very supportive. They allowed me to do a show just a day before my exam. Okay. So they were like, कि, no Diksha, this will help you gain confidence in your life. Correct. So do it, we are with you, and पढ़ाई भी हो जाएगी. And then eventually मुझे वो पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. तो दोनों हो गया. Yeah, दोनों हो Equally. गया. Wonderful. So tell to all the audiences watching this video right now Okay. something about beauty pageants, something about modeling industry. Okay, so beauty pageants जैसे हमें दिखता है कि it is all about beauty, but to be honest, beauty pageants is just 1% about beauty. Okay. You have to be a confident person. आपका एक purpose होना चाहिए life में. You have to be a social person also. आपका एक social cause भी आप लेके चलते हो life में. Correct. And वो platform की वजह से आप आगे क्या करते हो, आप आगे कैसे inspire करते हो youth को. And beauty pageants is all about personality development, I feel. Correct. कि see, I would say कि society में it is ऐसा कि आप अगर beautiful हो तो you are not smart. आप अगर ये Makes चीज़ में sense. अच्छे हो, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते. बट ब्यूटी पैजेंट टीचर्स यू कि आप सारी चीज़ें कर सकते हो एक Correct, साथ. correct. एक इंसान सारी चीज़ें कर सकता है. एक इंसान एक गुड स्पीकर हो सकता है. शी इज़ Absolutely. good at her ramp walk, she's good at makeup, she's good at expressing herself, she carries a purpose within herself, and that's all about beauty pageants. Wonderful. So what is that one social cause that you want to take up maybe, or that you already have? Okay, so my purpose is all about Chakshudan. Okay. Chakshudan is all about eye donation. See, we have got a great life. Correct. Right? And जब हम सबको कभी ना कभी इस दुनिया से जाना ही है. We have our like time limit. But हम जब जाते हैं तब हम कुछ किसी को क्यों नहीं दे जाते हैं. So the ones जिनकी eyes नहीं है,
we can donate our eyes after we can go, so that I have done. And मैं वो blood donation I have what we say कि मैंने ऐसा संकल्प लिया है कि I'll do Wonderful that. यार. I think everybody जो हमें अभी सुन रहे हैं, ये चीज़ें जो दीक्षा ने अभी बोली, we all have a purpose of living our own lives, and I think वो हमको directly और indirectly कभी ना कभी realize हो जाता है. But then what is that one thing that we still, you know, we still think of giving it off to the society back once we are not here in the society. तो हमारे absence में भी हमारा presence होना चाहिए. It is something of that Yes. sort. तो I mean, gifting somebody beautiful eyes is maybe second aim of dream life. क्योंकि Yeah. जो कुछ नहीं देख सकता, अगर हम उनको भी अपनी Exactly. आंखें दे रहे तो मे बी ही कैन सी द एंटायर ब्यूटीफुल वर्ल्ड. Yeah. सो अगर आप अभी आपने नहीं सोचा होगा तो आप सोच लो कि आपका लाइफ का क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है. बट बिफोर दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड, लड़की को हमारे सोसाइटी में, एक लड़की जब फैशन इंडस्ट्री में जाती है तो क्वेश्चंस, क्रिटिसिजम्स अचीवमेंट से ज़्यादा होते हैं. Right. तो व्हाट इज़ योर जर्नी बिहाइंड इट? So to be honest, मैं वो सेक्टर में आई एम वेरी लकी. ओके. मुझे बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स मिले हैं सिंस द बिगिनिंग. उन्हें क्योंकि पता था कि मैंने कभी कार्टून्स नहीं देखे हैं मेरी लाइफ में. आई हैव ऑलवेज वॉच ब्यूटी पैजेंट्स. Correct. आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट इट. सो दे न्यू कि मुझे उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है. एंड वो लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. एंड अराउंड मी ऑल्सो पहले लोग ऐसे थोड़े वो थे कि वेयर इज शी गोइंग, मॉडलिंग इज़ नॉट गुड, ऐसा वैसा. बट देन जब उन्होंने मेरी ग्रोथ देखी एंड उन्होंने देखा कि नहीं यार, ये कोई गलत चीज़ नहीं है. करेक्ट, करेक्ट. एंड ये चीज़ आपको सही में कॉन्फिडेंस लाती है आपके लाइफ में. इट लाइक मेक्स अ होल पर्सनालिटी ऑफ योर सेल्फ. सो अब वो लोग जिन्होंने क्वेश्चन मार्क्स उठाए थे, वो लोग ही अब मुझे कॉल्स करके बोलते कि बेटा हमारे Yes, बच्चों so का भी करा दो थोड़ा. Nice. सो अगर आप कुछ करते हो अपने लाइफ में तो देयर आर नो क्वेश्चंस आई फील. Correct, correct. एंड या So, but then how did you tackle all those criticisms? मुझे टू बी ऑनेस्ट आई हैव ऑलवेज गॉट अ बिग cheerleaders in my life. I've never got haters or criticism वाले लोग. Some yeah. Touch wood. Touch wood. So मुझे हमेशा से बहुत आई एम सराउंडेड बाय माई सपोर्टर्स, माई cheerleaders जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है. यू वोंट इवन बिलीव स्नेहा, मुझे वो लोग पता भी नहीं है, दे आर माई रैंडम फॉलोअर्स. वो लोग दूसरे सिटी में रहते हैं बट ड्यूरिंग माई शो दे प्रे फॉर मी. Wow. एंड देर आर सो That मैनी. is such a blessing. Such Yeah. a blessing. एंड इतने किस्से हैं ना ये चीज़ को लेके कि आई हैव गॉट द बेस्ट फॉलोअर्स, आई हैव गॉट द बेस्ट cheerleaders आई फील. Oh. And I'm so nice. blessed to have. So, any one beautiful memory of yours, तुम्हारे अभी तक के जर्नी का सबसे beautiful? I remember कि मैं एक शो में थी and though I didn't win that show, I was the runner up over there. And जैसे ही वो हुआ, I was expecting because मैं थोड़ा satisfied नहीं थी and my parents were sitting in the audience and मम्मी एकदम ऐसे हो गई कि ये मेरी बेटी है. एंड आफ्टर दैट जब मैं मम्मा से मिली आफ्टर द शो तो मैंने मेरा जो क्राउन था वो मैंने मम्मा को पहनाया. Wow. एंड दैट वाज द बेस्ट मोमेंट. एंड जब उनके आईज में वो टीयर्स थे, उनकी स्माइल थी, एंड दैट इज़ माई ट्रू अचीवमेंट आई फील कि ये मैंने सही में अचीव किया है. Absolutely. Any one thing about parenting that Okay. you want to probably share with the audience, जो तुमको लगता है कि वो ऐसी ये चीज़ मम्मी पापा की इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं चाहती हूँ कि ये स्किल सारे पेरेंट्स में इनकलकेट हो. ओके, सो आई वांट टू टेल देम कि अगर आपके बच्चे कुछ चीज़ चाहते हैं तो फर्स्ट लिसन, उनका पूरा देखो कि व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ. एंड बीइंग अ पेरेंट आपको ऑफ कोर्स सेफ्टी पर्पसेस आपको course, रखना of चाहिए. मेरे पेरेंट्स ने भी रखा है ड्यूरिंग माई शोज़. बट आप उस चीज़ को समझो एंड गिव देम द विंग्स दैट दे वांट टू फ्लाई. Correct. बिकॉज अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर दे विल नॉट Get Go some ahead. support. Yeah. Correct, correct. सो मेन कि आप उनको सपोर्ट करो, उनके ड्रीम्स को समझो, उनके ड्रीम्स को खुद का ड्रीम बनाओ एंड देन फिर योर Wonderful line. चिल्ड्रन विल मेक यू प्राउड. आई मस्ट से दैट. Nice. So about this beauty pageant, so you have been to a lot of shows, you have done a lot of camp works and everything.
ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि अपार्ट, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि हर लड़की या हर लड़का ब्यूटी पैजेंट्स में नहीं जा सकता है बिकॉज सबके प्रायोरिटीज अलग अलग होते हैं, बट देन ऐसी कौन से स्किल्स है जो तुमने ब्यूटी पैजेंट से सीखे हैं एंड यू रियली थिंक कि ये सारे स्किल्स एक लेमैन को भी आने चाहिए अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए? ओके, सो ब्यूटी पैजेंट में ना हमें एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई जाती है विच इज़ स्टेज प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज, योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो. एंड ब्यूटी पैजेंट में ऐसा नहीं होता कि जब जितनी देर आप स्टेज पे रहते हो उतनी देर ही आपको नोटिस किया जाता है. यू आर नोटिस फ्रॉम द डे वन, द मोमेंट यू अराइव एंड टिल द लास्ट डे यू गो होम. वो पूरे टाइम आपको नोटिस किया जाता है कि आप कैसे बैठते हो, आप किससे कैसे बात करते हो. एंड लेट मी टेल यू दैट नो वन विल रिमेंबर यू कि आपने कैसे वॉक किया या आपने क्या कपड़े पहने थे उस दिन, बट पीपल विल रिमेंबर यू हाउ यू ट्रीटेड देम. सो बी अ गुड पर्सन फर्स्ट, एंड अगर आप अच्छे रहोगे, आपका मन अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट होगा ही. करेक्ट. सो देयर वाज दिस थिंग रिसेंटली जब हम लोग चैट कर रहे थे तो आई सॉ योर दिस इंस्टाग्राम प्रोफाइल और तुमने कुछ स्टोरीज अपनी रील्स रीपोस्ट की थी. उसमें देयर वाज दिस रील वेयरिंग यू वर कमिंग अप ऑन द स्टेज एंड यू हैड अ बिग joyful smile on your face. So I wanted to understand what's the reason behind it. Okay, so as I've already mentioned before कि मुझे ब्यूटी पैजेंट्स में बचपन से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी. सो अब जब मुझे वो मेरी ड्रीम जीने को मिल रही है ना, सब मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है कि नो, दिस इज़ माई नाइट एंड नो वन कैन स्टील दिस फ्रॉम मी. तो मुझे इसको एकदम अच्छे से जीना है. So that smile was exactly coming from the core of your heart. एंड वेन एवर आई एम इन स्टेज मुझे कभी ऐसे फील नहीं होता है कि मुझे आज जीतना है. मुझे वो थॉट्स नहीं आता है. मुझे ऐसा लगता है आज मुझे मेरा बेस्ट देना है. ये रात है, ये रात वापस नहीं आने वाली है मेरे लिए. मेरी जो मैंने इतने सालों से जो सोचा हुआ है मेरी ड्रीम, आज मुझे वो पूरा करने मिल रहा है. तो मैं उस चीज़ को जीती हूँ पहले. फिर अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो फिर हमें जो हार्डवर्क हमने किया है तो उसका हमें फल मिलेगा ही. ऑब्वियसली. सो आई वुड लव टू शेयर दिस दैट जब मैं दीक्षा का इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी अपने व्हाट्सएप चैट पे, शी हैपेंड टू सेंड मी हर एंटायर इंट्रोडक्शन एंड मैंने देखा उसमें देयर आई थिंक मोर देन 20 टाइटल्स. मिस वो क्या क्या आई सीरियसली डोंट, आई डोंट हैव माय फोन आल्सो, आई डोंट रिमेंबर 20 से ज़्यादा टाइटल्स एंड आई वाज लाइक यार ये 18 साल की है, इसने शुरू अभी किया होगा और इसको इतने टाइम में इतने टाइटल्स मिल गए. बट हियर माई द ओनली क्वेश्चन विच हैज अराइजन इन माई माइंड वॉज तुमने मैनेज कैसे किया? ओके, जब वो होता है ना कि अगर आपको करना होता है ना तो वो हो जाता है. एग्जैक्टली. एनी वन फॉर्मूला दैट यू मस्ट हैव यूज्ड? कुछ भी फॉर्मूला एज इन मेरा ऐसा है ना कि एक्सप्लोर योरसेल्फ. आपको जो पसंद है ना अपने लाइफ में डू दैट. मेरा ऐसा नहीं होता है कि मुझे मॉडलिंग पसंद है तो आई विल डू ओनली मॉडलिंग. नो, मुझे स्पीकिंग भी अच्छा लगता है. आई एम इनटू ओरेटिंग स्टफ ऑल्सो. सो मैं ओरेटिंग भी करती हूँ एंड आई एम इनटू सिंगिंग, डांसिंग. जो मुझे जब पसंद आता है वो करो, बिकॉज वो चीज़ आप जब करते हो ना तब आप अंदर से खुश होते हो, आप अंदर से कॉन्फिडेंस आता है एंड दैट्स व्हाट यू नीड इन लाइफ. Do that, whatever your heart tells. So now that we know that you are into this industry, there are a lot of girls still in the society who are having this big dream of getting into this industry. और उनके पास में no doubt मेरी ही कुछ friends हैं जिनके पास में बहुत skill caliber है and मतलब ऐसे दिल में वो बर्निंग फायर टाइप्स नहीं होता है, वो वैसा है उनको कि यार हमें इस इंडस्ट्री में जाना ही है, हमें टाइटल्स लेने हैं. तो फॉर एनीबडी हु इज़ रियली वांटिंग टू गेट इनटू दिस फील्ड, व्हाट आर द स्टेप्स दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल जस्ट एंटरिंग इनटू द फील्ड? ओके, सो अगर आपको इस चीज़ में जाना ही है, दिस इज़ अ ग्रेट इंडस्ट्री टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं 5 years से इसमें हूँ. एंड अगर आपको आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अगर आपको जॉब भी परस्यू करना है, आप कंपनी देखते हो कि कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है. सो द सेम थिंग अप्लाइज फॉर ब्यूटी पैजेंट्स ऑल्सो. अगर आपको कोई शो में जाना है तो आप पहले उस ऑर्गेनाइज़र की, उस ऑर्गेनाइजेशन की आप हिस्ट्री निकालो कि पहले के उनके शोज़ कैसे रहे हैं, विनर्स आज कहाँ हैं उनके, बिकॉज दैट ऑल्सो मैटर्स. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के विनर बन जाते हो, आपकी जर्नी वहाँ तक की नहीं रहती है.
आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, बीइंग अ विनर यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, करेक्ट। एंड वो पूरे जर्नी में द ऑर्गेनाइजेशन इज़ विथ यू. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप रहे एंड गो एंड देन जस्ट गिव योर बेस्ट, आई फील. Cool. So, what are your thoughts on women empowerment about this industry? See, let me tell you, in beauty pageants, women empower women. Oh. Yeah, because ये जर्नी में हम लोग किसी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं, वी आर सिस्टर्स. हम एक सिस्टरहुड डेवलप कर लेते हैं. बिकॉज ये पूरे टाइम पे, जैसे कि आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आई वॉज इन मिस नेशन फ्यू डेज अगो. सो वहाँ पे अगर One second. Before she goes on with her story, let me tell you that she is also the finalist of Miss Nation. Good. Now go on. Thank you. So a few days back when I was in Miss Nation, so वहाँ पे किसी का कुछ ईयरिंग मिस हो जाता है या किसी की कुछ ड्रेस का वो होता है, तो हम यानी किसी के अंदर है ना वो कॉम्पिटिटिव वाली वो नहीं रहती है, फीलिंग नहीं रहती है. नो वन इज़ अ कॉम्पिटिटर फॉर अस, वी आर सिस्टर्स एंड हम सबका पर्पस एक ही है, विच इज़ अपलिफ्टिंग द सोसाइटी एंड इंस्पायरिंग अदर्स. भले हम सबके वेज अलग अलग हैं बट हमारा गोल एक ही है. एंड हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं. कभी भी ऐसा हमें फील नहीं होता है, उस टाइम पे हम एक दूसरे के बिगेस्ट चेयर लीडर्स होते हैं. Obviously, yeah. यू वोंट बिलीव, नहीं तो ऐसे इन रील्स वगैरह हम देखते हैं सोशल मीडिया पे दैट फीमेल फ्रेंडशिप्स डोंट वर्क एंड स्टफ, Yeah. बट ब्यूटी पैजेंट्स में टोटली डिफरेंट सीन होता है. Wonderful, yeah. Yeah. Now, if I want to have good female friendships, so I probably have to enter into beauty pageant. So, You're a beautiful soul, yeah. Yeah. You'll get beautiful Maybe. friends. So now I want to ask कि ब्यूटी पैजेंट्स या मॉडलिंग इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं. सो any of Okay. the myth that you want to talk about, that you want to probably resolve, or you want to come up with a true storyline behind it? ओके, सो द मिथ, ये कोई मिथ नहीं है, ये एक वी कैन से कि लोगों का मानना है कि ब्यूटी पैजेंट इज़ नॉट गुड फॉर गर्ल्स, इट इज़ नॉट सेफ, वो आपके पिक्चर्स कभी दे विल लीक एंड गलत फ़ायदा उठाएगा आपका. बट लेट मी टेल यू कि ये हर प्रोफेशन में, Obviously. आप अगर कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर वर्किंग विथ. Correct. तो वही है कि आप अपनी सेफ्टी लेके चले, प्रिकॉशंस लेके चले, पूरा रिसर्च करें अबाउट द पीपल यू आर वर्किंग विथ, एंड देन इट इज़ ऑल becomes अबाउट easy. यू. Yeah, या correct. So what kind of people do you want to surround yourself with? मैं ऑलरेडी सराउंडेड हूँ विद द सपोर्टिव पीपल, द बिगेस्ट चेयर लीडर्स आई हैव इन माई लाइफ. एंड मुझे बस वही लोग, जो मोटिवेशन मुझे लाइफ में चाहिए रहता है, तो मुझे वो वही मिल लोग रहा दे देते है. हैं. या वही लोग दे Wonderful. देते हैं. Any good piece of advice that you want to give to all the people who are listening this video? Okay, so one piece of advice I want to give is that keep smiling, यार. I Because know. अगर हम हंसते रहेंगे ना, हमारी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली खुश अच्छी होती हो जाएगी. जाती है. या Cool. एंड नेवर स्टॉप ड्रीमिंग. बिकॉज आप अगर ड्रीम करते हो, मैनिफेस्ट करते हो ना कहीं यूनिवर्स में वो चीज़ आ जाती है एंड वो आपसे वो चीज़ें करवाने लगती है. आपके आजू बाजू ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, Energies भी आती है. एनर्जीज भी आती है. सो कीप ड्रीमिंग, मैनिफेस्ट करो यार. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू हैव टू डू द हार्ड वर्क ऑल्सो. Obviously, no doubt. या बिकॉज हार्ड वर्क के बिना ऐसे नहीं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास. नो, हार्ड वर्क इज़ नीडेड. You know, the same lines have been told by my best friend Shruti to me recently. ओके. और उसने मुझे सिखाया है कि स्नेहा you'll have to manifest if you really want to achieve something. So ऐसा नहीं है कि मैं पहले manifest नहीं करती थी अपनी dreams को लेके. Okay. I used to do, पर मुझे कभी ये नहीं पता था कि अच्छा इस process को manifest कहाँ जाता है. तो she was the Okay. one. तो उस दिन हम लोग कार में बैठे थे. We did like this. हमने से Yeah. हाथ पकड़े and we were like हम ये आज manifest करते हैं कि हम दोनों best friends साथ में अपने boyfriends को लेके घूमने जाएंगे. But ठीक है, female friendships are good, no doubt. Yeah. So you know, I want you to list out, because we are at the end of the podcast. So any list of the members or individuals जिन्होंने आपको बहुत support किया and you really want to thank them here in this show. द लिस्ट तो बहुत बड़ी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Few of them maybe now. Yeah, so first of all I would like to thank my mentors. First of all तो मेरी फैमिली है,
तो उनको तो ये लिस्ट में से एक्सक्लूड ही doubt. करता है, बिकॉज वो तो हमेशा ही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है. बट आई वुड लाइक टू थैंक माई मेंटर्स विच इज़ सोहेल सर, संजय सर, अंशुल सर एंड लोकेश सर, लकी भैया. ये सब मेरे इतने लाइक आई कुड से कि मेरे बिगेस्ट चेयर लीडर्स है ना, कि कोई भी शो में जाओगी उसके पहले वो लोग मुझसे मिलेंगे. मैं जब शो में रहूँगी दे विल प्रे फॉर मी. Wow. मंदिर जाके वो लोग मेरे लिए प्रे करते हैं. यू वोंट बिलीव, रिसेंटली इन मिस नेशन देयर इज अ सोल सिस्टर ऑफ माइन. शी केम फ्रॉम रायपुर जस्ट टू सी माई शो. Wonderful, yeah. So I would like to thank her also. And yeah, all of my friends, मैं शायद किसी का नाम लेना भूल गई होगी, but you guys mean a lot. आपके एक smallest like, comment, आपके shares या फिर आपके कोई story replies भी मेरे लिए बहुत mean करता है. Keep supporting, keep loving me and thank you so much. That's that. At last, the one question that I really want to ask is, any life lesson that you want to share? लाइफ लेसन आई वुड फील कि सी मेरी ये जो जर्नी थी ना, उसमें भी मुझे बहुत सारे लाइक बीच में आई वुड से कि ब्रेक डाउन्स आए हैं. बट आई शुड से कि कीप गोइंग, क्योंकि जब आप कुछ अचीव करते हो ना तो उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं. एंड उस टाइम पे गॉड आपको रियली टेस्ट करते हैं दैट यू आर एक्चुअली केपेबल ऑफ डूइंग दिस और नॉट. तो प्लीज़ यार कीप गोइंग, कभी गिव अप मत करो. एंड आखिरी में तो वो चीज़ जो आपको फल मिलेगा ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा. वो सब चीज़ का वर्थ इट रहेगा वो. Wow, wonderful. Any one last message that you want to give to all your supporters, cheerleaders and well-wishers? आई जस्ट सेड कि दैट कीप सपोर्टिंग मी. आपके जो छोटे छोटे मैसेजेस वगैरह रहते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मीन करते हैं. एंड या दैट्स इट. So that's that. Thank you for watching Sneha Towri. Today we had Diksha Patel with us, and I'm so happy that I am sitting with a 18-year-old kid. Not a kid as of now, but still a kid as of now. So I'm so happy to have you, Diksha, here, and I really pray कि हमारी इस conversation से बहुत सारी लड़कियाँ inspire हुई होगी, and they'll still give it a thought कि यार नहीं हम लोग भी करते हैं. ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको लगता है कि आप स्टक हो या आप इस इंडस्ट्री में नहीं जा सकते, या इफ़ यू फील कि यार देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स या मे बी बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत चैलेंजेस है, बहुत डिफिकल्टीज है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप दीक्षा को जाके फॉलो करो, उससे बात करो. शी विल ऑलवेज अप देयर फॉर यू, राइट? Yes, यस, of course. 100% मैं मेरे वर्ड्स देने के लिए रेडी हूँ. आप लोग को कभी भी कुछ भी लगेगा तो शी इज़ जस्ट अ कॉल अवे. मेक श्योर दैट यू यूज सच personalities in a good way to at least empower your career also. And we had a wonderful conversation. I am really happy, and let's hope for more such conversations. Exactly. I'm excited कि हम future में और भी ऐसे conversations Yes, लेंगे. 100%. In In a more different creative way. topics. Yes, Yeah. done. So thank you so much for watching. Stay tuned for a lot of content and see you. Bye bye.